Okay, let's begin. I think we've waited enough. All six of you are interested in studying, so I'll help you out. It's a very simple topic. Okay, we have more people joining in. Let's begin with the topic. First, let's understand cognitive psychology. Simple thing is, cognitive का मतलब होता है everything that is related to brain. Right. जो भी हो रहा है उससे related हम psychology में जो भी पढ़ेंगे, that is cognitive psychology. In simple words, study of mental processes. Mental process में क्या आएगा? How we are perceiving things, how we are thinking, what logic we are giving, what reasoning we are giving, हम कैसे चीज़ें सीख रहे हैं, वो सब कुछ cognitive psychology में पढ़ेंगे. For example, all of you, आप सभी ने ये मीटिंग ज्वाइन करी है. दिस इज एन एक्शन. क्यों? सबके गोल्स अलग हैं. किसी को ये टॉपिक समझना था, किसी को पेपर में अच्छे मार्क्स चाहिए, किसी को बस नॉलेज बढ़ानी है. So all of these are goals, but joining this meeting, that is a behavior, that is an act. ये सब कुछ cognitive psychology में आएगा. और क्या आएगा? कि how we notice some things, but कुछ चीज़ें हम नहीं देखते हैं. For example, if I show you 2-3 things in front of you, if I show like this, some people will notice the yellow color, some people will notice the rubber band. So ऐसा क्यों होता है कि हम कुछ चीज़ें ज़्यादा नोटिस करते हैं, कुछ चीज़ें इग्नोर करते हैं? How we are attentive towards one thing and not attentive towards others, all of that would come under cognitive psychology. Okay, after that, whatever we are going to study, in that there's one very small concept that I liked. It is called incubation effect. So ऐसा कई बार होता है that we are solving a question and बहुत देर से हम लगे हैं that कुछ तो आंसर आए, कुछ तो हो, but end of the day हमसे solve नहीं होता. But then we take a quick break, 15 मिनट बाद आते हैं and it gets solved instantly. ऐसा क्यों? This concept is incubation effect. All of this हमारे brain की power है कि how we are noticing some, we are failing at something. ये सिर्फ mental नहीं है. This is also about how we are seeing things. Many times it happens कि foggy weather में जो चीज़ें बहुत दूर हैं, इवन वो भी ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड ये तो बहुत पास में है, या फिर ऑपोजिट, पास की चीज़ें दूर दिख रही हैं. सो हमारा ब्रेन हमें ट्रिक कर रहा है, राइट? बिकॉज रियलिटी तो डिफरेंट नहीं है. ऑल ऑफ दैट इज कमिंग अंडर कॉग्निटिव. नाउ गोल्स ऑफ रिसर्च क्या है? गोल्स ऑफ रिसर्च सिंपल वर्ड्स में पहले हम डेटा कलेक्ट करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं, एक हाइपोथेसिस बनाते हैं. आई एम नॉट इलाबोरेटिंग दीज पॉइंट्स क्योंकि ये सब आएगा आपके उस वाले यूनिट में, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स में. उसमें बहुत डिटेल में पढ़ना है, उसमें अच्छे से करेंगे. इसमें बस समझ लेते हैं कि डेटा कलेक्ट, एनालाइजिंग, हाइपोथेसिस, देन विल टेस्ट द हाइपोथेसिस, देन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. अभी बस आप वर्ड्स पे फोकस करो, डिटेल उसमें हो जाएगा. देन व्हाट डू वी हैव? ओके, इन सिंपल वर्ड्स इसमें हम पढ़ेंगे हाउ एंड व्हाई. क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है. We'll study all of it. Now let's come to research methods. So I think there are 3 research, no. There are around 4 research methods. Okay, let's try to cover all of them. First one is laboratory or control experiments. इसमें क्या होगा? एक एक्सपेरिमेंटर होगा जो हर सिचुएशन को कंट्रोल में रखेगा. एटलीस्ट जो चीज़ें कंट्रोल की जा सकती हैं कि कितने लोग टेस्ट में रहेंगे, कितना अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, दोज थिंग्स वुड बी देयर. दोज आर कॉल्ड कंट्रोल्ड वेरिएबल, क्योंकि हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं. बट देर आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, उन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल टाइम. चाहे मैं कुछ भी करूं, आई कैन नॉट चेंज द टाइम. टाइम विल गो ऑन विद द सेम स्पीड. I cannot control it. But temperature. Temperature is something it can change. I can turn on the AC, I can turn on the heater, I can change it, and that will affect people. How come? There is a psychological fact कि गर्म temperature में in the summer season people feel more angry as compared to winter seasons. Of course ये हर situation में same नहीं है, but this was an added factor. कि अगर हीट रहेगी तो पीपल आर ऑलवेज आर्ग्यूइंग, पीपल आर एंग्री. ऑल ऑफ दैट कम्स अंडर कंट्रोल्ड वेरिएबल. एंड इट मीन्स कि एंगर जैसी चीज़ इट इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल, जो दूसरी चीज़ों पर डिपेंडेंट है.
इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं बदलेगा, टाइम नहीं बदलेगा, चाहे आप टेम्परेचर 0 डिग्री रखो या 50 डिग्री। कि वो एक रैंडम सैंपल ऑफ पॉपुलेशन लेगा। रैंडम सैंपल यानी अगर मुझे टीनेजर्स पे रिसर्च करना है तो आई विल टेक 13 टू 19 का एज ग्रुप। स्पेसिफिकली ऐसा नहीं कि सिर्फ इस एरिया या वो एरिया, आई जस्ट टेक द टीनेजर्स एंड आई विल कंडक्ट अ रिसर्च। टू बी मोर स्पेसिफिक, रिसर्च होता है एक कॉज के लिए और इफेक्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे देखना है कि जल्दी उठने से प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होती है क्या टीनेजर्स में, सो आई पुट इट एज टीनेजर्स में मैं चेक करूंगी जो 5:30 पे उठ रहे हैं वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं या फिर जो 10:30 पे उठ रहे हैं वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं। All of that I have to do because I am the experimenter. Then second काम है मेरा to control the variables, जो चीज़ें मैं कंट्रोल में रख सकती हूँ क्योंकि तभी मुझे डिजायरेबल रिजल्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टीनेजर्स पे ये टेस्ट कर रही हूँ एंड बाय चांस दूसरे फैक्टर्स आ रहे हैं, किसी को शादी में जाना है, किसी के एग्जाम it in an atmosphere इन सारे हैं, so I have to take an environment जहाँ सब कुछ कंट्रोल में हो और फोकस सिर्फ उनकी प्रोडक्टिविटी पे रख सके। Okay, I think that should be it for laboratory one. Second is psychobiological research. Okay, इसमें आएगा कि हमारा ब्रेन कैसे अफेक्ट करता है हमें। So there are many techniques जिससे हम ब्रेन की प्रोसेस एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हैं। So there are three major ones. First is when a person dies, उसकी डेथ के बाद उसकी ब्रेन एक्टिविटी टेस्ट की जाएगी, उसके ब्रेन में क्या क्या डिफरेंसेस थे वो देखे जाएंगे पोस्टमार्टम। सेकेंड टेक्निक में जब वो इंसान अपनी डेली एक्टिविटी कर रहा है, वो लिख रहा है, खा रहा है, तब उसके दिमाग में क्या एक्टिवेट हो रहा है, क्या न्यूरल सिग्नल्स आ रहे हैं, वो स्टडी किया जाएगा। ये सब रिसर्च के अंदर आ रहा है। दैट्स व्हाई ऑल ऑफ दीज वुड इंक्लूड सम सैम्पल्स, सम सब्जेक्ट्स। उन सब्जेक्ट पे हम टेस्ट करेंगे हमारा रिसर्च का टॉपिक कि हाइपोथेसिस ट्रू हो पा रहा है या नहीं। Then third is simple. Third, I'll give a task. फर्स्ट पोस्टमार्टम था, सेकंड था जब वो एक पर्टिकुलर नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हैं, उनका डेली रूटीन चल रहा है, थर्ड स्पेसिफिक टास्क में उनके ब्रेन में क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू सी कि जब लोग अपना इंग्लिश ऐसे लिखते हैं सो देन उनके ब्रेन में क्या चल रहा है। आई वॉन्ट टू सी कि मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त उनका ब्रेन क्या कर रहा है। All of these would come under psychobiological. Just go with the word. First laboratory था, it means experiment होगा, lab के अंदर होगा, controlled होगा। Psychobiological है brain और biology, यानी brain के अंदर क्या चल रहा है, कैसे पता करते हैं। सिंपल MRI scans होते हैं, CT scans होते हैं, इन scans से वो image दिखती है brain की and we reach our conclusion. ये सब हमें नहीं करना पड़ेगा, बट जो psychologists ये research करते हैं they have to study all of it. Now coming to the third one. This one is self-reports, case studies and naturalistic observation. Self-report is हमें खुद करना है, जैसे कि मैं अपनी खुद रोज डायरी एंट्री कर रही हूँ, आज मैंने ये किया, कल मैं ये करूँगी, आई एम ट्रैकिंग ऑल ऑफ इट। तो ये क्या होता है, बहुत डिटेल्ड हो सकता है, मैं बहुत कुछ लिख सकती हूँ, बिकॉज जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो लैबोरेटरी में आप अकेले बहुत सारे लोगों को देख रहे हो, इट्स नॉट ईजी। बट जब सेल्फ रिपोर्ट होती है आप कितना डिटेल कर सकते हो, आप बहुत डेटा कलेक्शन कर सकते हो। कमिंग टू केस स्टडीज, केस स्टडीज में आप इन डेप्थ रिसर्च करोगे बट किसी और के बारे में, अपने बारे में नहीं। आप किसी और के बारे में पूरा समझोगे कि वो ये कर रहे हैं, आप उनको कैसे एनालाइज करोगे, वो सब कुछ आएगा केस स्टडी में। नाउ नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, इट इज ऑल्सो सिंपल। जैसे लैबोरेटरी में हो रहा था कि आप वो डेली एक्टिविटी कर रहे हैं, खा पी रहे हैं और आप ट्रैक कर रहे हो, बट ये लैबोरेटरी वाला एटमॉस्फेयर नहीं होगा। आप अपने नॉर्मल घर में हो और आपका रूटीन ट्रैक कर रहे हैं, आपके ब्रेन में क्या चल रहा है, आप कैसे एक्ट कर रहे हो, वो सब आ जाएगा सेल्फ रिपोर्ट्स, केस स्टडीज और नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में। 3 हो गए। देन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, व्हाट इज दैट? इट इज टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस आप लोग डिटेल में समझोगे लेटर ऑन व्हेन जब रिसर्च वगैरह पढ़ेंगे हम, बट हाइपोथेसिस, लेट मी गिव एन एग्जांपल। सो अगर एक प्रॉब्लम है हमारे पास
we think कि people who work hard, they will be more satisfied in life. We want to test कि वो सच में satisfied होते हैं या disappointed होते हैं. ये हमारा problem है. Hypothesis हो सकता है कि हाँ ये झूठ है. People who work hard, they are not satisfied. ये मेरा hypothesis है. I'm not sure. अब मैं क्वेश्चंस फ्रेम करूंगी, मैं सैम्पल ऑफ पॉपुलेशन को दूंगी, उस पर डिपेंड करेगा कि हाँ फाइनली वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट, मेरी हाइपोथेसिस ट्रू है या नहीं. सो इस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का यही मतलब है दैट वी विल चेक whether the research, whether the hypothesis that I have given, it is true or not. उसका बस वही पर्पस है. Now coming to the fourth one. अब तक हमने लैबोरेटरी देख लिया, साइकोबायोलॉजिकल देख लिया एंड केस स्टडी सेल्फ रिपोर्ट देख लिया. नेक्स्ट इज सिंपल, इट इज कंप्यूटर सिमुलेशंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कि रोबोट्स. अब रोबोट्स और साइकोलॉजी का क्या कनेक्शन है? सिंपल, रोबोट्स मशीन्स इसीलिए डिज़ाइन किए गए थे. ऑफकोर्स स्टार्टिंग में डिज़ाइन किया गया था कि वो मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करें, बट लेटर ऑन उन प्रोग्राम्स को ह्यूमन ब्रेन से कनेक्ट किया गया, क्योंकि हम भी मेमोरी स्टोर करते हैं, कंप्यूटर भी इसको स्टोर करता है, हम भी रिकॉल करते हैं, कंप्यूटर भी करता है. सो वी वर ट्राइंग टू फाइंड द कनेक्शन कि अगर हम रोबोट्स को ब्रेन की तरह कर लें सो इट वुड बिकम ईजियर, राइट? ह्यूमन ब्रेन बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट हम उसको रोबोट के जरिए बहुत ईजिली समझ सकते हैं. नाउ देर इज ऑफकोर्स सम डायरेक्ट इफेक्ट. डायरेक्ट कैसे? क्योंकि जो भी रोबोट करेगा वही ह्यूमंस में टेस्ट कर सकते हैं हम, कि अगर रोबोट एक मैथमेटिकल इक्वेशन 10 सेकेंड में सॉल्व कर दे रहा है एंड ह्यूमंस को लग रहे हैं 10 घंटे, सो वी कैन कंपेयर कि किस पार्ट ऑफ ब्रेन में वो इशू हो रहा है, कैसे करना है. मेन कॉन्सेप्ट इज कि जैसा हमारा ब्रेन है वैसा हम रोबोट डिजाइन करें, मशीन डिजाइन करें. व्हेन आई एम सेइंग रोबोट, आई एम रेफरिंग टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई. आप लोगों ने देखा होगा, आई थिंक बीच में सोफिया बहुत फेमस हुई थी. क्यों? रोबोट्स तो उसके पहले भी बन रहे थे, बट शी वॉज मोर रिलेटेबल बिकॉज वो ह्यूमंस की तरह कम्युनिकेट कर पा रही थी, ह्यूमंस की तरह सोच पा रही थी. शी वॉज एबल टू पुट हर थॉट्स अक्रॉस लाइक ह्यूमंस. वही गोल है. सिर्फ रोबोट बनाना is not a money making industry, it's also to understand humans as whole. Now coming to cognitive psychologists, वो क्या करते हैं? कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट्स ब्रेन को और डीपली और इन डिटेल समझ रहे हैं कि हम ऐसा करते हैं तो क्यों करते हैं. If we decide to talk instead of write, why do we do that? If we decide to meet new people instead of staying at home, why do we do that? All of this would come under cognitive psychologists. They'll study it. Now cognitive science क्या है? Cognitive science is the combination of cognitive psychology, psychobiology, AI, philosophy, linguistics, all the topics they come under cognitive science. मतलब आप समझ जाओ, साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स और ब्रेन से रिलेटेड टॉपिक्स सारे उसमें मिक्स्ड रहेंगे. Now coming to what is the work of cognitive psychologists. First, they will use their ideas and methods. क्यों? So that they can acquire knowledge and use knowledge. है ना? मेन मोटिव एज ह्यूमंस हमारा यही है कि हम नॉलेज गेन करें इन वन वे और अनदर. तो वही कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट्स करेंगे. देन उनका सेकेंड काम है कि वो अकेले ना रहें, दूसरे फील्ड्स के साथ भी कोऑर्डिनेट करें. सो ऑल द अदर फील्ड्स लाइक आर बिहेवियर साइकोलॉजिस्ट्स, आर फिलोसफर्स. दिस कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट. वाई? क्योंकि एक फील्ड डेवलप होती है, उसके डेवलपमेंट से दूसरी फील्ड भी अफेक्ट होगी. So psychologists have to stay connected to other fields ताकि अपग्रेड होते रहें. ये सब सिंपल था, ये सब बेसिक था. Now coming to the main topic, the important things which matter. Cognitive psychology में 12 major principles हैं. These principal areas we'll discuss. सारे simple हैं. Let's try to cover as much as we can. First one is cognitive neuroscience. Okay. Cognitive neuroscience, simple. ब्रेन से रिलेटेड है, बट हियर वी आर फोकसिंग ऑन आवर इंटरनल स्ट्रक्चर, ऑन आवर नर्वस सिस्टम. कैसे? ब्रेन में जो भी हो रहा है वो हमारे एक्शंस को अफेक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू माइट हैव सीन जो मेंटली इल पीपल होते हैं, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? उनका ब्रेन इज डिफरेंट फ्रॉम अस.
how of course not all the mental diseases, I'm referring to specific ones like Alzheimer's, like amnesia, all of these things. Here brain alag hai na, ये सब cognitive neuroscience में आएगा. Then coming to perception. Perception हम चीज़ों को देख के उन्हें कैसे समझते हैं. In simple words, detection and interpretation of sensory stimuli. For example, if you see a bottle, you can see कि ये एक bottle है, pink है. ये आप perceive कर रहे हो, ये आप समझ रहे हो. That is perception. ये important क्यों है? क्योंकि हम जैसे चीज़ों को समझते हैं वैसे ही चीज़ों को याद रखेंगे. आपने देखा पिंक बॉटल है तो आपके दिमाग में एक इमेज बन गया, बॉटल पिंक. फिर आप आगे मेमोरी में उसको होल्ड करोगे. कैसे? क्योंकि आपको पहले से भी डेफिनेशन पता है, बॉटल्स होती हैं, उनसे पानी पीते हैं, पिंक कलर की भी होती हैं. बस वो इंफॉर्मेशन एड ऑन हो रही है आपकी मेमोरी में बिकॉज ऑफ परसेप्शन, क्योंकि आप परसीव कर रहे हैं. 2 पॉइंट्स, ये न्यूरोसाइंस एंड परसेप्शन. कमिंग टू द थर्ड वन, विच इज पैटर्न रिकग्निशन. पैटर्न रिकग्निशन, इट इज एज सिंपल एज इट साउंड्स. जब आप कुछ भी देखते हैं, आप एक चीज देखते हैं, वो सिर्फ एक चीज से रिलेटेड नहीं है, वो कई चीजों से रिलेटेड है. फॉर एग्जाम्पल, जब आप देखते हैं कि बाहर बहुत ठंड है तो आप क्या करते हैं? यू वेयर कोट्स. Why? Because it's cold. आपको स्वेटर्स पहननी पड़ेंगी. This is the action that comes out of the environmental stimuli. Stimuli is just a small thing which gives or takes out some reaction out of a person. So temperature यहाँ पे एक stimuli था. Another example could be बारिश हो रही है, thunder हो रहा है, आवाज आ रही है. So we get startled, right? Suddenly बिजली कड़कती है, हम कांप जाते हैं. क्यों? This is how we recognize it. कि जब बिजली कड़क रही है, it is scary, it might hurt, it might kill us. तो ये है pattern recognition. That was it about it. Let me just see if I'm missing something. Okay. Even when we are reading something, तो रीडिंग में क्या है? सिर्फ कुछ वर्ड्स, लाइंस खिंची हैं, कर्व्स बने हैं. हाउ आर वी एबल टू रीड? बिकॉज हम पैटर्न रिकॉग्नाइज कर रहे हैं. हम देख रहे हैं कि ए ऐसे बना है, बी ऐसे बना है. ऑल ऑफ दैट इज लीडिंग टू रीडिंग. द सेम थिंग विथ स्पीकिंग. दिस इज जस्ट अ रैंडम बंच ऑफ वर्ड्स दैट आई एम पुटिंग आउट. ये कैसे बन रहे हैं शब्द जो आप समझ पा रहे हैं? बिकॉज आपने सुने हैं ये वर्ड्स. यू कैन अंडरस्टैंड ऑल ऑफ इट. इट इज फॉर्मिंग अ पैटर्न. All of that comes under pattern recognition. Coming to attention. So in the beginning, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था that we remember few things and we forget others. That is all part of attention. हमें कुछ चीज़ें नोटिस हो जाएंगी, हम कुछ चीज़ें देख लेंगे, whereas कुछ चीज़ों पे ध्यान ही नहीं जाएगा. The same thing is because of attention. Attention में होगा कि क्या information मुझे चाहिए और कितनी information मुझे चाहिए. It's about what and how much. That's it. Now our capacity, हम कितना information store कर सकते हैं, वो दो factors पे depend करता है, sensory और cognitive. Sensory मतलब audio, visual. For example, if I show you too many pictures in one go, बहुत सारी pictures आपके सामने रख दूँ, you'll get overwhelmed, कुछ समझ नहीं आएगा. The same way मैं बहुत सारे audios बजा दूँ, हिंदी, English, मराठी, सारे गाने बजा दूँ, कुछ समझ में नहीं आएगा. All of that is because you'll get overwhelmed because of too many sensory stimuli. The same thing happens with cognitive as well. For example, आपकी life में बहुत गड़बड़े चल रही हैं. You're not able to study, you're not able to work, you don't have the money. बहुत stress हो जाता है. People face mental breakdown. क्यों? क्योंकि limit जितना है, जितना capacity है, उससे ज़्यादा deal करना पड़ रहा है. Overload of sensory stimuli or cognitive stimuli will lead to breakdown. All of that comes under attention. एक बार में कुछ ही चीज़ों पे ध्यान दिया जा सकता है. For example, right now you can only focus on this class. अब बीच में घर में कोई बुला रहा है, फोन चला रहे हैं. You cannot understand everything. You might have to lose something. That is attention. That's it. Coming to consciousness. Consciousness simple है. आपको पता है, जैसे बोलते हैं right now you're conscious. आप कॉन्शियस हो तभी तो मुझे समझ रहे हो, सुन रहे हो. अनकॉन्शियस, जब हम बोलते हैं बेहोश हो गया, अनकॉन्शियस गोज ऑन बिहाइंड द हेड. वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन. इन सिंपल वर्ड्स, current awareness of external or internal circumstances is called
कॉन्शियसनेस। तो जो बिहेवियरिस्ट्स होते हैं, बिहेवियरिस्ट्स वो साइकोलॉजिस्ट्स हैं जो बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं, वो अंदर मेंटल प्रोसेसेस क्या चल रही हैं दे डोंट केयर। तो उन्होंने कॉन्शियसनेस को रिजेक्ट कर दिया था, दैट इट डजंट मैटर। क्यों? वो बोलते थे दिखता नहीं है तो हम कैसे मान लें? इट्स द सेम बिलीफ, व्हाट यू कैन टच, व्हाट यू कैन सी, यू डोंट बिलीव इन इट। सो बिहेवियरिस्ट्स weren't in this favor, बट हमारे कॉन्शियस थॉट्स आर वेरी रियल। राइट नाउ आपके दिमाग में कोई थॉट चल रहा है, इस मीटिंग के बाद क्या करना है, इस मीटिंग में कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ऑल ऑफ दीज थॉट्स आर वेरी रियल। ये सब कुछ इमेजिनरी नहीं है, इट इज़ हेल्पिंग यू थिंक, इट इज़ हेल्पिंग यू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल, जब आप क्लॉक देखते हैं, अभी आप टाइम देखोगे इट्स 1:23, तो क्या थॉट आ रहा है आपके दिमाग में? 1:23, 20 मिनट हो गए, ओ माई गॉड, और कितना चलेगा, और ओ माई गॉड टाइम पास्ट टू क्विकली। ऑल ऑफ दीज थॉट्स दे कम अंडर कॉन्शियसनेस, यही सब मैटर करता है। कमिंग टू द सिक्स्थ वन विच इज़ मेमोरी। मेमोरी आई थिंक हमें पता है, इट इज़ रिलेटेड टू परसेप्शन। हाउ? जो हम परसेप्शन में देखते हैं, यू माइट रिमेंबर परसेप्शन के टाइम पे मैंने बॉटल दिखाया था, इट इज़ स्टिल स्टोर्ड इन योर मेमोरी, सो इट इज़ स्टिल कनेक्टेड। आपकी मेमोरी में स्टोर होता है, आई थिंक यूर अवेयर दिस, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी में हम स्टोर करेंगे लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे हिंदी और इंग्लिश में बात कर रही हूँ, ये आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में है, आपको ये भाषा तभी समझ में आ रही है ना, बिकॉज ये वर्ड्स आपके दिमाग में स्टोर्ड है। एज सून एज आई एम सेइंग, आप उनका मतलब समझ रहे हो, आप कॉम्प्रिहेंड कर रहे हो, वी आर एक्टिंग इन द मैटर इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, और आप समझ पा रहे हो, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ मेमोरी। एक सेकेंड हो जाता है और हमारे दिमाग में क्या क्या हो जाता है, हम क्या क्या समझ लेते हैं। ऑल ऑफ दिस इज द ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पूरे चैप्टर में वी आर ओनली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि नॉलेज हमारे पास कहाँ से आ रहा है एंड हाउ आर वी रिप्रेजेंटिंग इट इन द ब्रेन। ओके, नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज कैसे होता है? फर्स्ट थिंग कि वो क्या सिंबलाइज कर रहा है, एंड सेकंड कि वो कंबाइन होगा पहले की स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन से। Again, coming to the bottle example, I promise I'll come up with another one. Right now only bottle is coming to my mind. तो bottle वाला example क्या? आपको bottle दिखाई गई, pink bottle. Now आपके दिमाग में already there is a bottle. There is some information stored about bottle, कि bottle कैसी होती है, कैसी दिखती है. Now adding another bottle, that is adding more information, combining with your previous one. आपके पास definitions हैं bottle की, pink color की, उसमें बस extra information add हो रही है. That is it. Now coming to two major aspects of cognition. दो major aspects क्या हैं? First है conceptual based, second है process based. Conceptual based मतलब हम concept समझ रहे हैं कि bottle ऐसी होती है. Of course सबकी definition अलग है. सब लोगों के लिए bottle का definition अलग होगा. कुछ लोगों के लिए steel bottle होगा, कुछ लोगों के लिए plastic होगा. We think differently. That is concepts. How concepts can affect our thinking. इवन दो हम अलग सोचते हैं, वी आर स्टिल वेरी सिमिलर, हम कई चीज़ों में रिलेट कर पाते हैं। दैट इज़ द ओनली हाईलाइट पॉइंट कि वी कैन थिंक डिफरेंट, स्टिल वी कैन बी रिलेटेबल, वी कैन बी अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स ईच अदर। दैट इज कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट इन सिंपल वर्ड्स इज डेफिनेशन, आप कैसे किसी चीज़ को डिफाइन करते हो। देन द प्रोसेस पार्ट, कि ब्रेन में इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर हो रही है और कैसे प्रोसेस हो रही है, ऑल ऑफ दैट वुड कम अंडर प्रोसेस। That is it. That was it about representation. Please इसे याद रखना, आगे के टॉपिक्स में ये काम आने वाला है. We'll discuss about cognitive maps and stuff, वहाँ काम का है. Okay, coming to the eighth one, which is imagery. I do not know अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, but English poetries में imageries होते हैं. Imagery in the sense, if I say one sentence, listen carefully. If I say, it is raining, it is lightning outside. तो एक इमेज बनी है आपके दिमाग में, बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है. इफ आई से दैट द बेल रैंग ट्रिंग, तो आपको सुनाई दिया कि ट्रिंग हुआ होगा, बेल बजी होगी. ऑल ऑफ दैट इज इमेजरी. हमारी ब्रेन की ये पावर है कि हम कुछ भी इमेज में बना सकते हैं. आवर ब्रेन कैन क्रिएट इमेज ऑफ एनीथिंग. फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ आई कैन नॉट सी फेसेस ऑफ एवरीवन. I can only see the face of Mr. Pradeep, but I can still assume कि आप लोग ऐसे दिख रहे होगे, आप लोग अभी ये कर रहे होगे. All of that is my imagination.
Similar way for you, जो भी हम imagine करते हैं, जो भी हम देखते हैं, that comes under imagery. Now comes the cognitive map thing. तो अगर मैं आपको एक कॉग्निटिव मैप बनाने को बोलूँ तो आप जस्ट इमेजिन करो एक गूगल मैप बट डिटेल्ड. गूगल मैप हैज़ नथिंग ओवर द पावर ऑफ अ ब्रेन मैप. ब्रेन मैप में आप पूरा बिल्डिंग, ट्रीज, इवन चेयर्स आप सब इमेजिन कर सकते हो. जस्ट इमेजिन आप किसी प्लेस पे वेकेशन के लिए गए थे, आप किसी के घर गए थे, एंड इफ़ यू हैव टू ड्रॉ द मैप अगेन, आप एग्जैक्टली पिक्चर कर सकते हो कहाँ उसका डोर था, कहाँ उसका किचन था, सोफ़ा की क्या पोजीशन थी, सब लोग कहाँ खड़े थे, डोर्स का लॉक कैसा था. All of that you can imagine, you can create a map of it. That is cognitive map. That is the representation of everything present in the environment. We can do it, nothing and no one else can do it. Coming to ninth one, which is language. लैंग्वेज हमें पता है, लैंग्वेज इज द फॉर्म ऑफ नॉलेज. हमारे पास जो भी नॉलेज है वो हम गेन कर रहे हैं और एक्सप्रेस कर रहे हैं ओनली बिकॉज ऑफ नॉलेज, सॉरी ओनली बिकॉज ऑफ लैंग्वेज. अगर मुझे इंग्लिश या हिंदी नहीं आती होती, मैं नहीं बता पाती. इफ यू वुडंट नो इंग्लिश और हिंदी, यू वुडंट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग इन दिस क्लास. दैट इज नॉलेज. नाउ सेंट्रल कंसर्न ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या है कि हम कैसे लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं नॉलेज गेन करने के लिए. दैट इज इट. क्योंकि लैंग्वेज से हम सारे थॉट्स कन्वे कर सकते हैं, जो भी मुझे कहना है, और आप समझ सकते हैं जो भी आपको समझना है. ऑल ऑफ दैट इज सर्कलिंग अराउंड कॉग्निटिव. इसलिए लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉग्निटिव मीन्स ब्रेन, राइट, एंड वट एवर नॉलेज वी आर गेनिंग दैट इज कनेक्टेड टू लैंग्वेज. उसके बिना हमें कुछ समझ में नहीं आएगा. Coming to the 10th one, that is developmental psychology. I'm not sure ये हमारे syllabus में है या नहीं, but development psychology is studying everything from infancy, that is when you're born, till the time you die, till your old age. समझना कि हर एज ग्रुप में लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उनके बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, उनके ब्रेन में क्या चेंजेस होते हैं. ऑल ऑफ दिस इज स्टडीड अंडर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी. और जो भी हम एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं, जैसे बचपन से लेके अब तक आपने जो जो सीखा है, वो सब आपके ब्रेन को अब फॉर्म कर रहे हैं ना. फॉर एग्जाम्पल, कभी आपका अगर हाथ जलता है तो यू अंडरस्टैंड कि भाई फायर से दूर रहना है. वी डोंट हैव टू बी नियर और इवन इन द क्लोज अप्रॉक्सिमेट डिस्टेंस ऑफ फायर. ऑल ऑफ दैट हैज टू बी केप्ट इन माइंड. वो सब डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में आता है. आई थिंक वी डू हैव, हाँ, हमारे पास लाइफ स्पैन साइकोलॉजी का एक सब्जेक्ट है ना, दैट इज इन अनदर वर्ड्स डेवलपमेंटल साइकोलॉजी. उसमें हमें यही समझना है कि बचपन से लेके अब तक what changes do we go through. That is it. Now coming to the 11th one. Okay, thinking and concept formation. Okay, thinking is the most important thing. I think we should all agree. I know ये concepts बहुत similar लग रहे हैं, perception, thinking हैं ये similar, no doubt. बहुत minute सा difference है. Thinking is कि कैसे हम new चीज़ें समझ रहे हैं अपने दिमाग में. For example, when I say think about a dog, तो आपने एक डॉग का इमेज बनाया, आपने डॉग के बारे में सोचा. दैट इज थिंकिंग. थिंकिंग में न्यू इन्फॉर्मेशन भी ऐड हो सकती है, पुरानी इन्फॉर्मेशन अपग्रेड हो सकती है. ऑल ऑफ दैट इज कमिंग अंडर थिंकिंग. दैट्स इट. ओके, लास्ट वी हैव कम अक्रॉस ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अब ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या है? ह्यूमन इंटेलिजेंस इज ऑल अबाउट ARU. मुझे ऐसे ही याद हुआ, आई सजेस्ट द सेम थिंग. इट इज अबाउट acquiring, recalling and using the knowledge that you have. Now ये knowledge is usually of two types. एक होगा concrete, एक होगा abstract. Concrete, just imagine like we say for walls, wall concrete है. So जो भी चीज़ आप देख सकते हो, सुन सकते हो, for example a dog. A dog is concrete. आप उसे देख सकते हो, you can hear him barking. If I say lake, lake भी एक concrete चीज़ है. अगेन कमिंग टू एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट आप देख नहीं सकते, आप सुन नहीं सकते. इफ आई से शी इज टेलिंग द ट्रूथ, अब आप ट्रूथ को देख थोड़ी सकते हो, बट यू कैन स्टिल परसीव, आप स्टिल समझ सकते हो. ऑल बिकॉज यू आर इंटेलिजेंट. I mean, you have human intelligence and definitely you are intelligence.
you have that intelligence, that's why. The same thing goes with all the abstract terms. जैसे मैं बोल दूँ honesty, lie, all of these things which cannot be seen, they are still part of your intelligence, and that's why you become intelligence. IQ इसीलिए calculate करते हैं ना, जब बोलते हैं इनका IQ बहुत low है. So it is talking about many things. It is not just talking about solving 10 into 25. It's also about how you are perceiving emotions, thoughts, actions. कई लोग आप देखते हो बच्चों का आईक्यू बहुत कम होता है. वाई? बिकॉज वो नहीं समझ पाते गुस्सा. दे डोंट अंडरस्टैंड लाइज एंड ट्रूथ्स. दे डोंट अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स. उन्हें ये पता है कि वो डोर है, वो विंडो है, but they don't understand that this person is upset or sad. When I'm saying kids, I'm meaning like really young ones. They have the lower IQ. Okay, that was it about the human intelligence. Artificial intelligence, also इस topic में आपको लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें repeat हो रही हैं. It's okay, just understand it and move on. Artificial intelligence, the same thing. Machines, कि how machines comprehend everything. कैसे? They'll create a set of rules, will follow the rules. The same rules would go also for language. We discussed it earlier. जैसे language में भी rules है ना, there are grammar rules we have to follow, there are syntactical errors that can happen. All of that is coming under rules that we have to follow as being intelligent beings. Now, अगेन ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है कॉग्निशन का. हाउ वी आर डिजाइनिंग द प्रोग्राम इन अ कंप्यूटर, वो डायरेक्टली रिलेटेड है ह्यूमन इंटेलिजेंस से. Right, that is the only concept. I'm repeating it, I'm hoping you're understanding it. That was it about the 12 concepts. I just want to know, is there any doubt, any confusion? कोई भी चीज़ जो समझ में ना आई हो, please let me know. If everything is clear, we can move forward. Just show me a thumbs up. Paridhi said yes. Mr. Pradeep, I can only see your face, so I'll have to ask. Okay, everything is clear. Fine. I know बहुत simple and there's only a blurred line between all the topics. बहुत similar हैं. I'll send the notes if you want to. I made the notes from the book itself. जो book है उसी के notes हैं. It's the same thing. I've just put it in pointers. I'll suggest the same thing to you as well. कि pointers में अपने notes करना बहुत simple topic है, बहुत easy है. Main concept समझ के रखना है and everything would be fine. Okay, now we're coming to brief history of cognitive psychology. ब्रीफ हिस्ट्री में विल कवर कि स्टार्टिंग कैसे हुई, रेनेसांस में क्या हुआ, 20th सेंचुरी में क्या हुआ, अभी क्या चल रहा है. नाउ कमिंग टू द बिगिनिंग ऑफ इट, द स्टार्टिंग ऑफ इट. सो द अर्ली थॉट्स ऑन थिंकिंग. सिंस हम हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं तो ग्रीक और इजिप्ट तो पक्का आएगा. ग्रीक फिलोसोफर्स, आई थिंक यू माइट हैव heard of एरिस्टोटल एंड प्लेटो. इन दोनों के थॉट्स पे आएंगे. उसके पहले what was the main question of all of these thinking and thoughts? उन्हें बस ये जानना था कि नॉलेज कहाँ से आ रही है और कैसे ब्रेन में रिप्रेजेंट हो रही है. आई मेंशन्ड इट इन द बिगनिंग कि यही दो मेन क्वेश्चंस हैं जो अभी भी हैं और पहले भी थे. हाउ डू वी आंसर इट? उन लोगों ने दो तरीके निकाले. वन इज एम्पिरिसिस्ट्स, अदर इज नेटिविस्ट्स. एम्पिरिसिस्ट्स क्या बोलते थे? वो बोलते थे कि नॉलेज आती है एक्सपीरियंस से. लाइफ में हमने जो जो देखा है उसी से हमें नॉलेज मिल रही है. अगर मैंने देखा है दैट इफ़ यू ऑलवेज हेल्प अदर्स यू विल गेट हेल्प इन रिटर्न, तो मैं भी दूसरों की हेल्प करूंगी. दिस इज व्हाट एम्पिरिसिस्ट्स बिलीव्ड. नेटिविस्ट्स ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि ये इनेट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम सीखते नहीं हैं एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में, ये हमारे अंदर ऑलरेडी होता है. तो मैं लोगों की मदद करूंगी बिकॉज मेरे अंदर वो टेंडेंसी है, नॉट बिकॉज मैंने सीखा है या मैंने देखा है. तो ऑफ कोर्स ये दोनों ने ऑपोजिट व्यूज दिए और दोनों के व्यूज को हम साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर पाए. वी कुडंट प्रूव एनीथिंग. ऑफ कोर्स ये सेंचुरीज ओल्ड बात है, तो दे कुडंट प्रूव एनीथिंग. नाउ जो इजिप्शियन पेंटिंग्स होते थे, जैसे हमारे यहाँ होते ना पत्थरों पे बने होते हैं, द सेम वे इजिप्ट में भी होते थे. उनके पेंटिंग्स से जो डिसाइड किया उससे पता चला दैट दे हैड टू कॉन्सेप्ट्स. एक कॉन्सेप्ट था, उनको लगता था कि हम दिल से सोचते हैं. दिस इज व्हाट एरिस्टोटल बिलीव्ड एज वेल, कि हमारा जो नॉलेज है उसका सेंटर है हमारा हार्ट. आवर हार्ट इज डिसाइडिंग एवरीथिंग, आवर हार्ट इज अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग.
नाउ एरिस्टोटल का जो स्टूडेंट था प्लेटो, वो इसके ऑपोजिट था. उसने बोला हम दिल से नहीं सोचते हैं, वी थिंक फ्रॉम ब्रेन. ब्रेन इज द लोकस और सेंटर ऑफ ऑल आवर नॉलेज. ऑल ऑफ दैट वाज सेड बाय प्लेटो. ये सब चल रहा था अर्ली थॉट्स में, एकदम सेंचुरीज अगो दिस वाज द थॉट. नाउ उसके बाद कमिंग टू द रेनेसांस पीरियड. रेनेसांस क्या है? रेनेसांस इज सेकेंड स्टेप. ऑफ कोर्स कुछ तो नया होगा ना, कुछ तो होना है. तो रेनेसांस में गॉड के बिलीव्स बहुत आ गए, भगवान और डिवाइन ये सब मैटर करने लगा. तो इन्होंने बोला कि नॉलेज ब्रेन में है, बट इट इज ऑल्सो अबाउट डिवाइन बिलीव्स. हमें फिजिकल सेंसेस के साथ, यानी कि टेस्ट, स्मेल, टच, ऑल ऑफ दोज 5-6 सेंसेस, अपार्ट फ्रॉम दैट डिवाइन नॉलेज की वजह से भी हमें कुछ पता है. they believed this. Again, scientifically ये भी prove नहीं किया जा सकता था, but here psychologists and theorists they came up. So 18th century, that is 1700s, उसमें British empiricists आए और उन्होंने बोला कि internal representation, it means thoughts अंदर हमारे brain के represent होते हैं through 3 ways. First is कि first तो हम sensory event लेंगे. Let me take one example. Okay, no more bottle. Let's take the pillow. So sensory event, eyes हमारी इसको notice करेंगी. It's a pillow. First thought. Second होगा faint copy of percepts. It means कि जो भी हमारा perception है pillow को लेके, अब वो इसको relate करने का try करेगा कि हमने pillow देखा है, soft होता है, colorful होता है, fur होता है या नहीं होता है. All of that is our previous thoughts. सो फर्स्ट हो गया, हमने उसको परसीव किया हमारे सेंसेस के थ्रू. सेकेंड, वी ट्राई टू रिलेट इट थ्रू आवर पास्ट नॉलेज. थर्ड इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दीज फेंट कॉपीज ऑफ परसेप्शन. हमारी पहली पिलो की क्या इमेज थी, उसको हमने हमारी करंट इमेज से रिलेट किया. दैट्स इट. क्या स्टेप था? पहले हम चीज़ को देखेंगे, सेकेंड हमारी प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करेंगे, थर्ड हम कंबाइन कर देंगे. अब वो न्यू नॉलेज एड ऑन हो गई है. ये सब हुआ था 18th सेंचुरी में ब्रिटिश एम्पेरिसिस्ट्स द्वारा. एम्पेरिसिस्ट्स, आई एम होपिंग यू रिमेंबर, डिड वी डिस्कस एम्पेरिसिस्ट? या वी डिस्कस्ड एम्पेरिसिस्ट्स एंड नेटिविस्ट्स, राइट? तो इन्होंने बोला था एक्सपीरियंस से आता है. उन्होंने ये बोला, यहाँ पे एक्सपीरियंस मैटर किया, राइट? आपको पहले से पता था पिलो कैसी होती है, तब न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड हुआ. 18th century done. Coming to the 19th century, here psychologists like Gustav is a very popular name. I think he was a German psychologist. आएगा आगे भी बुक्स में, उसकी थ्योरीज भी आएंगी. उसने क्या बोला? उसने बोला कि यहाँ पे सिर्फ 2 वेज में डिवाइड किया जा सकता है. फर्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ मेंटल रिप्रेजेंटेशन, कि हम ब्रेन में कैसे इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, दैट मैटर्स. एंड सेकेंड इज प्रोसेस, द सेम थिंग दैट वी डिड अर्लियर, कि पहले तो स्ट्रक्चर ब्रेन का मैटर करता है कि ब्रेन में, आई एम होपिंग यू रिमेंबर दैट देयर आर सम पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, कोई पार्ट इंफॉर्मेशन याद रखता है, कोई पार्ट म्यूजिकली इंक्लाइंड होता है. ऑल ऑफ दैट इट वाज फोकसिंग ऑन द स्ट्रक्चर और फिर कैसे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं. ये बात हुई थी 19th सेंचुरी में. उन्होंने बोला कि हम फैक्ट्स पे जाएंगे, हम थ्योरीज पे नहीं जाएंगे, वी विल बी मोर फोकस्ड ऑन द फैक्ट्स. स्पेक्यूलेशन, थ्योरी, ये सब तो कोई प्रूव नहीं कर सकता ना. वी विल बी मोर फैक्चुअल. दैट्स व्हाई दे फोकस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस, कि कैसे हो रहा है और ब्रेन कैसा है, सिर्फ इस पे ध्यान देंगे. जब जर्मन में ये चल रहा था, तब अमेरिका में देयर वाज अ गाय नेम्ड जेम्स. ही डिड सम रिमार्केबल थिंग्स. क्या किया उसने? फर्स्ट, उसने जर्मनी में जो थ्योरी दी गई थी उसको एनालाइज किया. थ्योरी क्या थी? यही 2 थी, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड एंड प्रोसेस ऑफ ब्रेन. फिर उसने ही पब्लिश्ड अ बुक कॉल्ड, लेट मी जस्ट सर्च द नेम, या what was the name, in 1890, Principles of Psychology. Just the name signifies कि तब in 1890, 200 साल पहले, I mean not exactly 200 but around that year, तब उसने ये बुक निकाली. and this was very revolutionary. Why? Because he also established the first psychological laboratory in America. Laboratories होते थे,
बट साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी जहाँ पे सिर्फ ब्रेन पे फोकस किया जाएगा इन 1890, विच वॉज अ वेरी बिग डील, ही वॉज फोकसिंग ऑन एवरीथिंग दैट गोज इनसाइड द ब्रेन. हम कैसे ब्रेन में इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ऑल ऑफ दिस मैटर्ड. वाई? बिकॉज उसकी थ्योरीज में मेमोरी पे फोकस था. एंड इफ़ यू गाइज रिमेंबर, जो हमने 12 प्रिंसिपल्स पढ़े उसमें भी मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट था, कॉग्निटिव. सिंस इसकी थ्योरी में पार्ट था, दैट्स वाई ही कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट इन टुडेज कॉग्निटिव साइकोलॉजी. दैट्स इट. 19th सेंचुरी में इतना हो गया. कमिंग टू द 20th सेंचुरी. Okay, 20th century was a big disappointment in simple words. Why? क्योंकि यहाँ पे दो theories आ गए, behaviorists वाली और gestalt वाली. So, okay, let me just check the name. It was gestalt, right? Yeah, gestalt. Behaviorists I mentioned in the beginning. उनका focus था सिर्फ behavior पे. I do not know. I don't think you have heard the Pavlov theory. आप में से किसी को भी पता है Pavlov? If you do, Paridhi, do you want to try? Would you like to share it with the group? I don't remember it exactly because I learned it in 14 or 15 session. At that time, I was pursuing B.Ed, so that time I learned it. Okay, no worries. I'll let you guys know because बहुत interesting theory है. When I started studying psychology 3 years ago, मैं impress हो गई थी उस theory से. So there was a researcher called Pavlov. उसने क्या किया? He took a dog and a bell. अब क्या थ्योरी थी कि वो बेल बजाता था एंड फिर खाना देता था डॉग को. सो स्टिमुलाई यहाँ पे बेल था और फूड उसको दिया न्यूट्रल स्टिमुलस की तरह. और डॉग का रिएक्शन क्या था? ही विल स्टार्ट सैल्वेटिंग. खाना देख के द डॉग विल स्टार्ट सैल्वेटिंग, राइट? दैट्स द कॉन्सेप्ट. उसने ये रिपीटेडली किया, बहुत बार किया. और फिर क्या हुआ? उसने बेल बजाई और खाना नहीं दिया, but dog was still salivating. So this was about stimulus and response. कि stimulus जो होगा, response वो आएगा ही. This was the main theory. So कई बार क्या हुआ कि बेल बजी, खाना नहीं मिला, तब भी dog salivated. All of this was the main concept of behaviorists. वो behavior observe कर रहे थे, उन्हें mental processes से कोई मतलब नहीं था. It didn't matter to them. ये सब चल रहा था 20th सेंचुरी में. उसी टाइम पे जेस्टाल्ट की थ्योरी भी आ गई थी. जेस्टाल्ट ने क्या बोला? ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमॉर्फिज्म. आइसोमॉर्फिज्म में क्या था? देयर इज अ वन ऑन वन रिलेशनशिप बिटवीन रियलिटी एंड रिप्रेजेंटेशन. यानी कि हम जो भी सोचते हैं वो रियलिटी से डायरेक्टली कनेक्टेड है. दैट्स व्हाट ही सेड, कि जो रियलिटी है वही रिप्रेजेंटेशन है. इट इज़ नॉट अबाउट मेंटल प्रोसेसेस, मेमोरी, वो सब उसको मैटर नहीं किया था. इट्स जस्ट अबाउट रिप्रेजेंटेशन, रियलिटी. जो रियल है वही रिप्रेजेंट होगा. ये जो बिहेवियरिस्ट्स और जेस्टाल्ट थ्योरिस्ट्स ने किया, फॉर 50 years no one talked about attention, memory. cognitive psychology took a back seat. कुछ नहीं हुआ उस बारे में. उसके बाद since they were focusing only on behavior, यहाँ पे there was no development for cognitive psychology. But of course कुछ तो psychologists करेंगे. In 1932, Tolman came into existence. What did he do? उसने rats के ऊपर एक experiment किया and rats को रखा एक maze में. Maze, I'm hoping you guys understand, it's like a labyrinth. वो नहीं होता इधर से निकलते हो फिर घूम फिर के यू गो टू द एंड. दैट इज मेज, दैट्स अ लैबिरिंथ. रैट्स को वहाँ पे रखा एंड आफ्टर रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स ही ऑब्जर्व्ड कि उन्होंने अपने ब्रेन में एक लेआउट बना लिया. घूम फिर के होता है ना, आप जाते हो लेफ्ट जाते हो, रास्ता बंद है तो अगली बार आप लेफ्ट नहीं जाते हो, अगली बार आप राइट जाते हो इफ यू आर प्लेस्ड अगेन एट द बिगनिंग. क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन ने एक मैप बना लिया. आपके ब्रेन ने मैप बना लिया दैट आई विल नॉट गो टू द लेफ्ट बिकॉज लेफ्ट इज नॉट द राइट साइड, इट्स ब्लॉक्ड, आई विल गो टू द राइट. वही चीज से व्हाट वी नो नाउ, कॉग्निटिव मैप, जो हमने बिगनिंग में डिस्कस किया, कॉग्निटिव मैप की इन्वेंशन वहां से हुई. what? That we form the picture, we form a map, and that decides our future action. That was it. इससे ये भी समझ में आया that it is not about stimulus and response.
हम यहाँ पे बेल, घंटी, फूड, उससे कोई कनेक्शन नहीं कर रहे हैं. दिस इज आवर ओन रियलाइजेशन दैट वी आर बिल्डिंग अ मैप एंड दैट इज हेल्पिंग अस टू सॉल्व द प्रॉब्लम. ये 1932 में हुआ टोलमैन के थ्रू. 1932 में अनदर साइकोलॉजिस्ट केम, बार्टलेट. अब इसने जो मेजर थ्योरी थी जर्मन्स की मेमोरी, फॉरगेटिंग, स्ट्रक्चर, प्रोसेस, इसको कम्प्लीटली रिजेक्ट किया. उसने बोला कि ह्यूमन मेमोरी बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है. इट्स नॉट एज सिंपल एज जस्ट स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस. इट इज अबाउट सो मैनी थिंग्स, सो मच इंफॉर्मेशन. हम उसको यूटिलाइज करते हैं एंड दैट्स हाउ वी नो सो मैनी थिंग्स. उसने एक कॉन्सेप्ट दिया स्कीमा का. आई एम नॉट श्योर आगे काम आएगा या नहीं, बट स्कीमा इज अ वेरी स्मॉल थिंग. इट इज द एसेंस ऑफ एक्सपीरियंस. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से डॉग, आप एक बच्चे को दिखाते हो कि देखो बेटा ये डॉग है. उसने डॉग को देखा, वो समझ गया डॉग हैज 4 legs, अ टेल, आईज, ईयर्स. अब उसके सामने आप कैट रख दो, वो बोलेगा डॉग. नो, आपका स्कीमा बना था कि वो डॉग के 4 legs होते हैं, ईयर्स होता है, टेल होता है, वो तो कैट का भी है. तो द किड विल कॉल द कैट एज डॉग, राइट? बट वही तो हम चेंज करेंगे, दैट इट इज स्मॉलर, इट्स अ डिफरेंट क्रीचर, maybe even bigger sometimes, that it has some lashes and some mustaches. All of that schema form हो रहा है ना, वरना आप डॉग कैट में डिफरेंस कैसे बताओगे? धीरे धीरे होता है. वी स्टार्ट विद वन स्कीमा, और फिर वन स्कीमा के बाद हम और फैक्टर्स ऐड करते हैं, कैटेगरीज बढ़ती जाती हैं. लाइक फर्स्ट वी कैटेगराइज ह्यूमंस, एनिमल्स. फिर ह्यूमंस में जेंडर्स, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर. देन इन द जेंडर, स्ट्रेट, गे, बाइनरी. All of that, these are all schemas. Categorizing people, all of that would come under schema, जो बार्टलेट की थ्योरी ने प्रपोज किया. Okay, that's it for 20th century. Coming to the today, the process, the significance of cognitive psychology. 1950s आ गया, वापस attention, memory, consciousness, learning, इन सब पे फोकस आ गया. Behaviorists और ये सब कुछ रिजेक्ट कर दिया गया. Cognition वापस आ गया. क्यों? There are some points, I'll tell you how many. Okay, there were 6 failures, 6 things that went wrong, जिनकी वजह से कॉग्निशन वापस आ गया. फर्स्ट वाज फेलियर ऑफ बिहेवियरिज्म. बिहेवियरिज्म में हमने डिस्कस किया कि वो लोग सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे थे बिहेवियर को, दे डिडंट केयर अबाउट मेंटल प्रोसेसेस, विच इज नॉट पॉसिबल. आप बिहेवियर अकेले से कैसे कुछ भी जज कर सकते हो? दैट्स वाई देयर थ्योरी फेल्ड. दैट वाज द फर्स्ट रीजन कि कॉग्निशन ऊपर आया, कॉग्निशन बिकेम द हाईलाइट. ये सब इंपॉर्टेंट है पढ़ने को, बिकॉज दिस इज कमिंग इन द हिस्ट्री कि कॉग्निशन पहले ग्रीक फिलोसफर्स, ये हुआ रेनेसांस में क्या हुआ, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी में क्या हुआ, और अब क्यों कॉग्निशन साइकोलॉजी इतना इंपॉर्टेंट है. बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज प्रीवियस मेथड्स फेल्ड इन वन वे और अनदर. फर्स्ट वन वाज फेलियर ऑफ बिहेवियरिज्म. हमने बहुत बार उसको डिस्कस कर लिया, आई डोंट वांट टू एलैबोरेट दैट नाउ, बट सिंपल थिंग इज मेंटल प्रोसेसेस पे फोकस नहीं किया था, एंड दीज आर इम्पॉर्टेंट. एज वी कैन डिस्कस, हम एक दूसरे को समझ सकते हैं बिकॉज ऑफ मेंटल प्रोसेसेस. सेकेंड वाज emergence of communication theory. So communication theory में क्या हो रहा था कि we are able to communicate with each other. Why? Because of mental processes. हम attention दे रहे हैं, हम समझ रहे हैं, जो भी हम इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, ये सब कॉग्निटिव साइकोलॉजी में इंक्लूडेड है. दैट्स व्हाई वी हैव टू स्टडी इट. कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, विच इज मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स. मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स क्यों? क्योंकि बहुत सारी हमारे पास रूल्स चेंज हो रहे हैं, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, ग्रामर रूल्स चेंज हो रहे हैं, हमारा एटीट्यूड लैंग्वेज की तरफ चेंज हो रहा है. इट हैपन्स, राइट? अगर आप यूएस में जाओ एंड यूएस में यू आर नॉट स्पीकिंग इन इंग्लिश, यू आर स्पीकिंग इन अनदर लैंग्वेज, so the way people treat you, the way people communicate with you, it changes, it affects us. That's why that would come under modern linguistics and how it is affecting cognitive psychology. Okay, coming to memory research. Okay, memory research क्यों important थी? Because यहाँ पे every aspect that we go through, whether it's our verbal learning, यानी कि हम जो बोल बोल के नहीं सीखते हैं, we learned ABCD, क ख ग, all of this we learned, ये सब memory में हो रहा है ना.
अगर हम वो बिहेवियरिस्ट वाली थ्योरी फॉलो करें या फिर हम वो स्ट्रक्चर वाली थ्योरी फॉलो करें, वी वुडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये क्यों हो रहा है. वी हैड टू इंक्लूड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी, एंड मेमोरी आई मतलब मेंटल प्रोसेसेस आए, मेंटल प्रोसेसेस आए मतलब कॉग्निटिव साइकोलॉजी आई. सिंपल. Coming to the fifth one, computer science and other technological advances. ये भी simple है. क्यों? क्योंकि of course कंप्यूटर स्टार्ट किए गए थे मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, बट स्लोली वी रियलाइज कि नहीं यार, ये तो काफ़ी कुछ कर सकते हैं. दे कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड ब्रेन so well, so let's try to understand it. Let's try to understand human cognition as much as we can. इसलिए again it added to the benefit. Last thing that happened was cognitive development. कॉग्निटिव डेवलपमेंट से हम अपनी एबिलिटीज और मेच्योरिटी के थ्रू कॉग्निटिव साइकोलॉजी को समझ पाए. हियर कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम, जीन पियाजे. The spelling is different. I'll try to send it to you. Okay. So Piaget, it ends with T. It is quite an important name because ये lifespan में I think आना चाहिए. I think आएगा because it focused on that development theory. अगर आप लोग को याद हो, I mentioned infancy से लेके old age तक क्या क्या changes होते हैं, क्या क्या हो रहा है. All of that is coming under development psychology जो जीन पियाजे ने दी थी, और वो डिफाइन करने के लिए कॉग्निटिव साइकोलॉजी की ज़रूरत थी. इतने सारे कॉन्सेप्ट्स, ऑल दीज 6 पॉइंट्स, दे कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड विदाउट कॉग्निटिव साइकोलॉजी. दैट्स व्हाई दे केम इनटू एग्जिस्टेंस. ओके, नाउ इतने सारे कॉन्सेप्ट्स में हमने जो जो समझा, वन पॉइंट इज क्लियर, दैट नॉलेज रिलाइज हेविली ऑन आवर सेंसरी इनपुट्स. हम चीज़ों को कैसे देखते हैं, हम कैसे सुनते हैं, वही हमारे नॉलेज को अफेक्ट करेगा. राइट, लाइक राइट नाउ अगर आप कुछ और कर रहे हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. आई विल से 100 थिंग्स एंड यू विल गेट वन थिंग, यू विल फील लाइक कुछ समझ में नहीं आया, ये क्या हुआ. All of that happens. Why? Because knowledge is directly connected to our sense organs. I really appreciate Pankari's determination. She was in the car and then she decided, no, I have to learn, I have to study. So all of that really affects, right? हमारी cognition में वो सब, हमारे efforts, हमारे acts, these are all directly related to it. But it also focuses कि सिर्फ आइसोमॉर्फिक यानी रियलिटी और रिप्रेजेंटेशन एक हैं, काफ़ी नहीं है. आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी इज नॉट इनफ, काफ़ी नहीं था ये. टोलमैन ने लैबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स किए, बार्लेट ने ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट किए. आई एम होपिंग यू रिमेंबर टोलमैन वाज द रैट वन, बार्लेट वाज समवन हु ब्रॉट सो मेनी चेंजेस. ऑल ऑफ दैट, ये सब एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन था, ये सब साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया गया था. ये सब बिहेवियर्स, एक्शंस, रिएक्शंस, स्टिमुलाइज, इन सब से किया गया था. दैट वाज इट अबाउट the reasons that led to the emergence of cognitive psychology. That was it. Now comes key issues with cognitive psychology. There is one thing about psychology कि आप सिर्फ टॉपिक नहीं पढ़ोगे, आप पढ़ोगे कि वो क्यों आया और उसमें क्या दिक्कतें हैं. We have understood everything about cognitive now. ये बेसिक है, of course आगे के चैप्टर्स में we'll dive into detail. बट अब समझेंगे कि प्रॉब्लम क्या थी, दिक्कत क्या थी कॉग्निटिव साइकोलॉजी में. सो आई थिंक देर आर अराउंड 7 पॉइंट्स. ओके, ऑल दीज 7 पॉइंट्स हैव 2 juxtapositions. juxtaposition यानी ऑपोजिट चीज़ें. फर्स्ट पॉइंट था नेचर वर्सेस नर्चर. तो कन्फ्यूजन ये था, नेचर वर्सेस नर्चर उसमें भी आएगा लाइफ स्पैन वाले टॉपिक में. नेचर इज आर इनेट टेंडेंसी, हम अंदर से कैसे हैं. नर्चर इज आर एनवायरमेंट. टू गिव यू अ डिटेल्ड एग्जाम्पल, एक फैमिली में 2 बच्चे हैं. ओके, दोनों का नेचर तो सेम होगा बिकॉज दे हैव द सेम जीन्स. अब one person is getting better nurturing. एक बच्चे को मम्मी पापा बहुत प्यार कर रहे हैं, they are giving the best opportunities, best things in the world. दूसरे बच्चे को भाव नहीं दे रहे हैं, they don't care बच्चे के साथ क्या हो रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, whether the kid is happy or not. So here nurturing is different. अब दोनों की upbringing बहुत अलग होगी, बड़े होके दोनों बहुत अलग बन जाएंगे, उनका behavior अलग होगा, thinking, mentality सब different होगा. All of that comes under nature and nurture. तो प्रॉब्लम क्या है इसमें, कॉग्निटिव साइकोलॉजी में ये प्रॉब्लम है कि हम नेचर पे फोकस करें या नर्चर पे फोकस करें. नेचर पे फोकस करेंगे मतलब वी हैव टू स्टडी देयर ब्रेन.
कि भाई आपके ब्रेन में कैसा है, वेदर यू थिंक अलाइक और नॉट, आपके ब्रेन का कौन सा पार्ट एक्टिवेट हो रहा है व्हेन यू आर वर्किंग, व्हेन यू आर परफॉर्मिंग अ टास्क, उस पे फोकस करें या नर्चर पे फोकस करें, यानी कि एनवायरनमेंट पे, कि मैं आपको एकदम कूल एटमॉस्फेयर दे दूं, आपको सब कुछ सेट दे दूं, विल यू बी एबल टू कंप्लीट द टास्क, विल यू बी एबल टू टेस्ट योर लिमिट्स थ्रू दैट टास्क. ये कंफ्यूजन था, दैट वाज द बिगेस्ट फेलियर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, दैट इज द बिगेस्ट फेलियर, वी आर ट्राइंग टू सॉर्ट इट. Now coming to second one, rationalism and empiricism. Yeah, empiricism. Rationalism, simple, it means being rational, logic देना. तो अब क्वेश्चन है कि हम हर चीज को लॉजिकली सॉल्व करें, हर चीज को रीजनेबली आंसर निकालें, दैट इज वन वे, या फिर we focus on our perception through senses. Empiricism, if you remember, it is about experiences, how we learn, how we gain things. तो ये confusion था कि हम logic follow करें, rationalism follow करें, या फिर अपने experiences follow करें. ये contradictory क्यों है? I'll give an example. Like rationally you have to walk on the left side of the street. Okay, that's the rule. ये सही है, ये आपका रीजन है, आप फॉलो कर रहे हो. आपके एक्सपीरियंस में आपने देखा है कि कई बार गाड़ियां रॉन्ग साइड से आ जाती हैं, सो यू कांट स्टिक टू दैट रूल, आपको राइट जाना पड़ेगा वेदर यू वांट इट और नॉट. कई चीजों पे बीइंग रैशनल इज इम्पोर्टेंट, बट कई चीजों पे यू हैव टू ट्रस्ट योर एक्सपीरियंसेस. दोनों कंफ्यूजिंग थे, दैट वाज अगेन अनदर इशू विद कॉग्निटिव साइकोलॉजी. नाउ कमिंग टू स्ट्रक्चर्स वर्सेस प्रोसेसेस. अगेन जो पार्ट हमने पहले डिस्कस किया वो जर्मन साइकोलॉजिस्ट फोकस कर रहे थे कि ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है और प्रोसेस क्या है. अगेन ऑपोजिट, कि क्या हम स्ट्रक्चर पे फोकस करें, क्या हम उनके ब्रेन MRIs देखें, हम रिपोर्ट्स देखें, उसको एनालाइज करें, या फिर हम प्रोसेस पे फोकस करें कि लोग कैसे सीख रहे हैं, लोग कैसे एक्ट कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं. अगेन कंफ्यूजन था दो चीज़ों में, वी वर डिवाइडेड इन 2 ग्रुप्स, कहाँ जाएं, क्या करें. Again a failure. Then coming to domain generality and domain specificity. यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लेते हैं हम, अब हम इसको इन जनरल सबसे कंपेयर करें कि ये सबके साथ होता है, या फिर हम डोमेन स्पेसिफिक रहें. कंफ्यूजिंग सिंपल स्टेटमेंट. अगर योर फ्रेंड बिट्रेड यू, योर फ्रेंड चीटेड ऑन यू, तो अब आप ऐसे समझो कि सारे ही फ्रेंड्स ऐसे होते हैं, विच कैन बी ट्रू, क्या पता सारे फ्रेंड्स ऐसे हों, या फिर यू कैन बी स्पेसिफिक कि उस सिचुएशन में व्हेन योर फ्रेंड नीडेड help the most, maybe in that situation only they will cheat, बाकी situations में cheat नहीं करेंगे. You don't know क्या सही है क्या गलत है. Again it divides cognitive psychology in 2 parts. Same issue. Now coming to validity of causal inferences versus ecological validity. तो जब हम research पढ़ेंगे, research and statistics, वहाँ पे आएगा validity and reliability. So validity is किसी भी टेस्ट की validity होती है, यानी कि वो हर वक्त ट्रू होना चाहिए. आज जो मैं टेस्ट कर रही हूँ वो 10 साल बाद भी कोई करे तो ट्रू रहे, विच इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. आज के टाइम पे क्या टेक्नोलॉजी है, क्या लोग हैं, क्या लोग सोचते हैं. फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ इफ आई से दैट लव मैरिजेस आर द राइट थिंग्स टू डू, वही सही है, अरेंज मैरिजेस नहीं होने चाहिए. दैट माइट बी ट्रू राइट नाउ, बट 10 साल बाद what if it turns out that love and arrange both marriages don't work, कोई थर्ड कॉन्सेप्ट आ जाए. दिस इज अ वेरी कंफ्यूजिंग फैक्टर. ये वैलिडिटी पे, कमिंग टू दैट वन, दिस वाज जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ वैलिडिटी. वैलिडिटी या तो आप उसको एकदम लैब में उसको कंडक्ट करो कि एकदम हर चीज़ कंट्रोल्ड हो, एटमॉस्फेयर कंट्रोल्ड है, सिचुएशन कंट्रोल्ड है, आप या तो वैसे करो या फिर एकदम नेचुरल एनवायरनमेंट में टेस्ट करो. इफ़ यू गाइज रिमेंबर इन द बिगनिंग वी सेड कि एक इंसान का हम टेस्ट कर रहे हैं, वी आर चेकिंग कि वो लैब में कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कैसे टास्क परफॉर्म कर रहा है. इन अदर सिचुएशन वो अपनी डेली लाइफ में है, एंड देन हाउ इज ही और शी परफॉर्मिंग द टास्क. तो अब दोनों में कंफ्यूजन है ना, वेदर वी फॉलो द लैब वन और नेचुरल वन, क्योंकि दोनों ज़रूरी है. कई जगह हमें कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रिजल्ट देखना है और कई जगह हमें नेचुरल एनवायरनमेंट में रिजल्ट देखना है. आई एम होपिंग यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग इट. परिधि, एनी येस और नो? ओके ओके फाइन. Okay, coming to the 6th point, which is applied versus basic research. तो applied research क्यों करते हैं? To get some answers.
अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है और उसका हमको सोल्यूशन चाहिए तो हम अप्लाइड रिसर्च करते हैं। बेसिक रिसर्च क्यों करते हैं? अपनी इंफॉर्मेशन बढ़ाने के लिए। हमें और ज्ञान चाहिए तो हम बेसिक रिसर्च करेंगे ऑन दैट टॉपिक, रिलेटेड टू दैट टॉपिक, दैट इज बेसिक। अब ये कैसे पता होगा कि हमें अप्लाइड रिसर्च करना है या बेसिक रिसर्च? दैट्स द रियल कंफ्यूजन। क्योंकि कैसे पता होगा? सही बात है, समटाइम्स वी डोंट हैव टू लुक फॉर आंसर्स, समटाइम्स वी जस्ट वांट मोर नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स अंडरस्टैंड यूनिवर्स। अब यूनिवर्स के बारे में कई बार हमें पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए कि आखिर कितना यूनिवर्स है, कितने और गैलेक्सीज हैं, कितने और प्लैनेट्स हैं। all of that when you want to know, that comes under basic research. आप बस अपना knowledge बढ़ाना चाह रहे हो यूनिवर्स को लेके। applied research होगी if you want to look for a planet where life is possible, तो वो हो गई हमारी applied research psychology में। या परिधि, tell me. Just now on Google, a news was viral that a person who solved a puzzle for a Sanskrit puzzle, I guess, and it was 2500 years old puzzle. Yeah. So which one it will be? Matlab, is it applied or is it basic? Matlab? Yeah, I think for me, all that the only word that is coming to my mind is coincidence, because it's very difficult to believe it. Human brain cannot comprehend it, right? मैं तो मानूंगी नहीं that someone researched something years ago and it is possible even now. But of course, I can understand. Yes. Tell me. Just to correct the Faridi, it was not actually the puzzle. This guy actually corrected the grammatical mistakes which was year ago made by some translator. So it was translated wrongly, and this guy actually corrected that grammatical mistakes. So it was not solving the puzzle; it was something different than it. Oh, okay. So mistake happened first and solution was given later. That thing Yeah. happened, right? Okay. Solution was given right अभी थोड़े दिन पहले. हाँ, ओके। तो फिर ये अप्लाइड रिसर्च में ही आएगा बिकॉज देयर वाज एन आंसर टू द प्रॉब्लम, नो परिधि, दैट्स व्हाई। बेसिक इज बस नॉलेज बढ़ाना, अप्लाइड इज आंसर निकालना। वो सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए था। मेन कॉन्सेप्ट ये है दैट वी डोंट नो कि हमें अप्लाइड रिसर्च पे फोकस करना है या बेसिक रिसर्च पे। अगेन अ फ्लॉ ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कमिंग टू द लास्ट वन, ये है बायोलॉजिकल वर्सेस बिहेवियरल मेथड्स। एज द वर्ड्स आर डिपिक्टिंग, बायोलॉजिकल इज जब आप ब्रेन पे फोकस कर रहे हो कि हाँ ब्रेन का स्ट्रक्चर ऐसा है, ब्रेन इस पार्ट पे फोकस करता है। जब कॉग्निटिव टास्क करने होते हैं तो ब्रेन का कौन सा पार्ट एक्टिव होता है? आई नो राइट नाउ कॉम्प्लिकेटेड सॉल्व करता है, बट जब आप लैब में बैठे होते हो तो वो यू मस्ट हैव सीन इन दोज मूवीज, ऐसे वायर्स लगे होते हैं एंड वहाँ पे एक मशीन चल रहा होता है। तो जब आपको कोई क्यूट पिक्चर दिखाते हैं तो सम पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन लाइट अप, जब आपको कोई स्कैरी पिक्चर दिखाते हैं सो द अदर पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन लाइट अप। ऑल ऑफ दैट इज स्टडीड अंडर द लैब। सो दैट इज वन वे कि आप बायोलॉजिकल वे में स्टडी करो। दूसरा इज बिहेवियरल, कि हम आपके ब्रेन में क्या चल रहा है दैट डजंट मैटर, बट हाउ यू आर एक्टिंग, हाउ यू आर बिहेविंग, दैट मैटर्स। तो अगेन कन्फ्यूजन कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इज इट इम्पॉर्टेंट कि आप साइकोलॉजिकल पढ़ो, सॉरी बायोलॉजिकल पढ़ो या बिहेवियरल पढ़ो? अगेन अ फ्लॉ ऑफ कॉग्निटिव। दैट्स इट, दीज वर द फ्लॉज। बस ये वर्सेस चल रहा है कि ये करना है या वो करना है, बहुत सिंपल है। Okay, now coming to key ideas in cognitive psychology. Okay, there were 5 key ideas जो main conclusion निकला. Let's try to discuss it as briefly. First is data in cognitive psychology can be understood with theory as well as empirical data. उसने बोला कि cognitive psychology ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरी चलेगा जैसे फिलॉसफी में चलता है कि सिर्फ थ्योरीज आ रहे हैं, मॉरल डिलेमाज आ रहे हैं। वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में अकेला काफ़ी नहीं है, उसके साथ वी नीड डेटा एज वेल। एम्पेरिकल डेटा, एम्पेरिकल अगेन रिमेंबर फैक्चुअल, ऑल द नंबर्स, हमें फैक्ट्स भी चाहिए। कॉग्निटिव वुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ये है फर्स्ट मेजर आइडिया ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। जस्ट टू रिमेंबर, फिलॉसफी में सिर्फ थ्योरीज चलेंगे, मैथ्स में सिर्फ नंबर्स चलेंगे। आई मीन ऑफ कोर्स मैथ्स में भी थोड़े बहुत थ्योरीज हैं, but cognitive psychology is all about combination of theory and empirical data. First idea. Second idea is saying कि cognition
कहीं पे अडेप्टिव हो सकता है, कहीं पे अडेप्टिव नहीं हो सकता है. अडेप्टिव इन द सेंस, अडेप्टिव यू गाइज माइट अंडरस्टैंड कि जैसे कुछ एनिमल्स दे आर अडेप्टिव, उनको इस घर में ले जाओ वहां भी रुक जाएंगे, उस घर में ले जाओ वहां भी रुक जाएंगे. सो कॉग्निशन इज ऑल्सो सिमिलर टू दैट. इट इज अडेप्टिव बट इन सम केसेस अडेप्टिव नहीं रहेगा. कई जगह पे कॉग्निशन की लिमिट है. फॉर एग्जाम्पल, okay, sometimes if we are comprehending a bottle, again एक bottle को हम comprehend कर रहे हैं, if I show you a figure जो आपने कभी नहीं देखा है, जिसके बारे में आपको कोई idea ही नहीं है, like I show you something in 5D or 7D, आपका brain comprehend ही नहीं कर पाएगा. तो cognition की limit आ गई ना, वहाँ ये adaptive नहीं हुआ. फिर वहाँ पे it has its limit. कई places पे it is adaptive. That was the second major idea. Coming to the third one, cognitive processes interact with each other and with other non-cognitive processes. क्यों? Remember I was saying कि सब कुछ similar है, memory, perception, thinking, इतना similar है क्यों? Because it is connecting with each other. एक दूसरे के साथ उसका interaction और connection important है. Because जब आपको perception पता होगा तभी आप memory समझ पाओगे. जब आपको memory पता होगा तभी आप language समझ पाओगे. That's why it is important. Okay. Coming to the fourth point, cognition needs to be studied through scientific methods. हम इतना तो समझ गए कि जहाँ पे scientifically prove नहीं कर पा रहे थे, we had to throw that theory. हमने empiricists पढ़ा, nativists पढ़ा, दिल से सोचते हैं, दिमाग से सोचते हैं. We couldn't prove it, so we cannot continue it. अब वो concept नहीं follow कर रहे हम, दिल और दिमाग वाला. वो जो prove नहीं होगा, that will go back. Scientifically prove होगा तभी we will take it forward. Coming to the fifth one, all basic research in cognitive psychology may lead to application, vice versa. मतलब जो भी हम basic research करते हैं, if you remember basic research is knowledge बढ़ाना, वो होती है, उससे भी हम answers निकाल सकते हैं. That is, it will lead to application. और जो हमारी applied research होती है, जिससे हम answer ढूंढ रहे हैं, उससे भी तो knowledge बढ़ती है ना. So it is connected. That is again the last major idea of cognitive psychology. Okay. Now comes the very simple topic, computer metaphor and human cognition. Same thing that we discussed earlier कि computers को पहले design किया गया था numbers और problems और वो सब solve करने के लिए. But we discovered one thing कि जो चीज़ computer अच्छे से कर सकता है, humans cannot do it. वो नहीं solve कर सकते ना इतने बड़े बड़े problems इतने quickly. But जो चीज़ humans कर सकते हैं, वो चीज़ machines नहीं कर सकते, वो चीज़ computers नहीं कर सकते. कैसे? We can feel emotions. हमें गुस्सा, love, hatred, everything we can feel, but machines cannot. तो ये तो machine का flaw हो गया. So the next generation of psychologists, neuroscientists, everyone, उन्होंने better robots, better AI develop करने का try किया, जो थोड़ा humans की तरह हो. तो जो न्यू मशीन्स आए, उनके क्या क्या फीचर्स थे कि अब ये लोग ना मैथ्स में स्लो हो गए, बिकॉज ह्यूमंस आर आल्सो स्लो. तो इन रोबोट्स को स्लो कर दिया गया मैथ्स में. दूसरा इनका क्या स्किल था कि जो कॉम्प्लेक्स विजुअल पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि व्हेनेवर वी आर बुकिंग टिकट्स और वी आर डूइंग समथिंग, तो कई बार ऐसे वो पिक्चर टेस्ट नहीं दे देते हैं कि आइडेंटिफाई वेयर कैन यू सी द बस, वेयर कैन यू सी द ट्रीज, because robots cannot do it. It's a complex structure. वो चीज़ अब robots को सिखाई जा रही है ताकि they can be more like humans. क्यों बना रहे हैं humans? As I said, सिर्फ monetary benefit नहीं है. To understand our brain, we are doing it. We are making them more like humans. और क्या कर रहे हैं वो? And they are doing normal, silly mistakes जो हम humans करते हैं. कई बार we do it, right? Simple mistakes कर देंगे कि you might have seen that video कि एक इंसान फिशिंग कर रहा था, उसने फिश उठाई, फिश दिखाई अपने फोन से, एंड फिश फेंकने की जगह ही थ्रू द फोन. दिस इज अ सिली मिस्टेक दैट ह्यूमंस डू. पानी में फोन चला गया. दिस इज समथिंग दैट दे आर टीचिंग रोबोट्स. दे आर टीचिंग रोबोट्स एंड मशीन्स टू बी मोर लाइक ह्यूमंस. दैट इज द ओनली कॉन्सेप्ट ऑफ इट. दैट वाज इट अबाउट कंप्यूटर मेटाफर, कि हम कैसे उसको मोर ह्यूमन की तरह बनाने का ट्राई कर रहे हैं. वी आर मेकिंग इट वीकर, क्योंकि वो एक्स्ट्रा स्मार्ट रहेगा तो हम नहीं समझ पाएंगे ह्यूमन ब्रेन को. कमिंग टू कॉग्निटिव साइंस.
Cognitive science is a combination of three major things: computer science, neuroscience and cognitive psychology. ठीक है, तो जो लोग कॉग्निटिव साइकोलॉजी समझ रहे हैं वो कई बार दो टीम्स में डिवाइड हो जाते हैं. कई कई बार दे आर लीनिंग टुवर्ड्स कंप्यूटर साइंस कि हाँ भाई रोबोट्स एंड एआई को समझो, कॉग्निटिव साइकोलॉजी समझ में आ जाएगी. दूसरी टीम दे आर फोकसिंग ऑन न्यूरो साइंस कि हाँ ब्रेन स्ट्रक्चर, ब्रेन प्रोसेस को समझो, कॉग्निटिव साइकोलॉजी समझ में आ जाएगी. That is their concept. Now coming to last topic of our conversation, this would be it and we'll be done. It is about neuroscience and cognitive psychology. Neuroscience हमने डिस्कस किया. Neuroscience is about brain and हम कैसे brain से डील कर रहे हैं, brain का कौन सा पार्ट एक्टिवेट हो रहा है. स्टार्टिंग में फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी और न्यूरो एनाटमी पे फोकस नहीं किया था. फिजियोलॉजिकल क्या है, जैसे कि ब्रेन कैसा हमारा स्ट्रक्चर है, उस पर कभी ध्यान नहीं किया था. क्यों? ज़रूरत ही नहीं थी. द ओनली टाइम ब्रेन स्कैन्स वर टेकन कि कभी एक्सीडेंट हो जाए, कोई हेड ट्रॉमा हो जाए, किसी के सर पे हथौड़ा मार दिया है तो अब तो ब्रेन का एमआरआई निकालना पड़ेगा. ओनली इन दोज केसेस ब्रेन स्ट्रक्चर वाज सीन. उसके अलावा ऐसे कभी नहीं हुआ कि लैब में बिठा के आपका ब्रेन चेक करेंगे कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है. स्टार्टिंग में दैट वाज नॉट द फोकस. स्टार्टिंग में सिर्फ रेयर केसेस में देखते थे. उसके बाद क्वेश्चन आया कि हमें समझना है कि ब्रेन एक होलिस्टिक ऑर्गन है क्या, कि वो सेल्फ सफिशिएंट है, उसके अंदर सब हो रहा है, इधर से उधर सब कुछ जा रहा है. इज इट लाइक दैट, और इज इट कि एक पार्ट एक चीज करता है, लाइक वी हैव डिस्कवर्ड कि म्यूजिक सुन के एक पार्ट खुश होता है, एक पार्ट एक्टिवेट होता है, कि हैप्पी पिक्चर्स देख के ये पार्ट, स्केरी पिक्चर्स देख के ये पार्ट. सो वी वर कंफ्यूज्ड कि वेदर इट इज अ होलिस्टिक ऑर्गन कि एक साथ सब हो रहा है या फिर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में सब हो रहा है. ये सब समझने के लिए अगेन वी हैड टू गो थ्रू द प्रोसेसेस. पूरा हमें मेंटल स्ट्रक्चर्स एंड कॉग्निटिव मैप्स, बहुत सारे एक्टिविटीज, टास्क्स करने पड़ रहे हैं जस्ट सो वी कैन अंडरस्टैंड कॉग्निशन ऑफ ब्रेन मच बेटर. ओके, नाउ कमिंग टू एक साइकोलॉजिस्ट है, साइंटिस्ट है सॉरी, कॉल्ड कार्ल लैशली. So in 1929, he proposed the field of neuroscience. I mean, there was a lot of progress in neuroscience, and उससे उसने relate किया brain की psychology को, कि neuroscience और and brain psychology are connected. How come? कई neurocognitive techniques होते हैं जो कि हमारे brain को और अच्छे तरीके से समझने में help करते हैं. और brain क्यों समझना है? Because brain is the engine of cognition. मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट था कॉग्निटिव साइकोलॉजी को लेके दैट इट इज़ ऑल अबाउट मेंटल प्रोसेसेस. हमारे ब्रेन में क्या चल रहा है वो सब ब्रेन से समझेंगे. ब्रेन इज रिलेटेड टू न्यूरोसाइंस. सो न्यूरोसाइंस एंड कॉग्निशन आर कनेक्टेड. दोनों पढ़ना पड़ेगा इफ़ वी वांट टू अंडरस्टैंड. अब हम कैसे समझते हैं? देर आर मैनी स्कैन्स. देर इज़ EEG स्कैन, देर इज़ MRI स्कैन, देर इज़ PET स्कैन. इफ़ यू गाइज वॉच एनी डॉक्टर शोज, वहाँ पे आपको दिखेगा कि कैसे इन सारी स्कैन्स से हम क्या करते हैं, वो प्रोसेस कैसे जा रहा है, वी कैन अंडरस्टैंड. वी आर स्टिल ट्राइंग, वी आर स्टिल लर्निंग, दिस इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस बट विल कीप डूइंग इट. ये सारा हिस्ट्री से रिलेटेड सिर्फ इसी चैप्टर में था. आई डोंट थिंक हिस्ट्री और इतना सब कुछ नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ना होगा. सो आई थिंक दैट वाज इट. ये बहुत ही छोटा चैप्टर था, दैट्स व्हाई इट गॉट रैप्ड अप रियली क्विकली.